Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll discuss about the remaining part of chapter 2, that is the Lost Spring of Flamingo book, class 12th. So students, we had actually studied about Anise Jung's short story, and she had actually described about the grinding poverty which compels uh, the children, small children, to work in the industries or somewhere else to just earn their livelihood. Okay, and if we have talked about a character named Sahibe Alam, who was very poor, and after having some natural calamities in Dhaka, Bangladesh, they actually had to left his homeland, and then they actually migrated towards the periphery of Delhi, that is Simapuri. And now Sahib and his community, that means the rag picker community, they were they had been living in Simapuri for a few months. And very important thing that actually a woman told about, that is food was more important for them instead of some identity. Means they are actually in Dhaka, they had identity, but in Simapuri they didn't have any identity, but yes, they were actually able to cast votes, and they had ration cards identity. And but food was actually to meet 2 square meals of food was more important for them. And even the little boys of Simapuri, they had the desire to wear same pair of shoes. Okay, so a very small desire, but yet it was very big desire for these poor children. Okay, so let's continue the chapter. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eye lightening up. So when actually narrator asked him that actually why the garbage is gold for them, what the narrator told in the previous chapter, that in the previous video I have explained you, that he said garbage is gold for them because actually the children, they used to scrounge, they used to search for the extra money in the garbage. And for the elders, for the parents, actually this rag picking is actually the means of survival for them, or we can say the means for livelihood, the main earnings, the main occupations for them. Okay, so garbage was very, very important in rag pickers of Simapuri. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. Now, what Sahib is telling, sometimes they used to find a 10 rupee note, sometimes they used to find a silver coin. तो कभी तो उनको गार्बेज में 10 रुपी नोट मिल जाता, कभी उनको कोई सिल्वर का कॉइन मिल जाता, तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। और वैसे भी सीमापुरी के लोग किस पे डिपेंडेंट थे? रैग पिकिंग पे डिपेंडेंट थे उनके पैसों के लिए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. So actually, बच्चों के लिए it was just a game कि they used to go to scrounging for 10 rupee note or for any silver coins, and it was just an extra income for them. But for actually, if we talk about the parents, the main means of survival was rag picking for them. Okay, so parents के लिए तो पैसा कहाँ से आना था? rag picking से ही आना था। तो दोनों के लिए थोड़े अलग मतलब थे। बच्चे इसे गेम की तरह ले लेते थे कि गार्बेज में ढूंढना उन्हें अच्छा लगता था कि कभी कुछ एक्स्ट्रा 10 रुपी नोट मिल गया, कभी सिल्वर कॉइन मिल गया, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता था। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. So actually एक सुबह विंटर मॉर्निंग थी, तो साहिब जो था वो एक फेंस्ड गेट मतलब जो 4 दीवारी होती है ना, बाउंड्री है ना, तो उसके नेबरहुड में एक क्लब था, तो क्लब के आसपास 4 दीवारी मतलब गेट की बनी हुई थी। और एक्चुअली क्लब में यंग मैन जो थे वो टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस पहन के।
तो साहिब ने हम क्या होता है थोड़ा मटरिंग करना, स्लो वॉइस में अपने आप से बोलना, तो उसने बोला कि आई लाइक द गेम, मुझे टेनिस बहुत पसंद है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, अब वो क्या बोल रहा है कि अंदर जब कोई नहीं होगा तब मैं जाऊंगा। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, अब वो क्या कह रहा है कि मैं ज़रूर जाऊंगा, एडमिट करा, उसने एग्री करा, और जो गेट कीपर है वो उसे स्विंग करने देगा, वहाँ झूले झूलने देगा। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. तो साहिब ने भी उस समय कुछ टेनिस शूज़ पहन रखे थे, लेकिन they actually looked so peculiar. Strange means peculiar, बहुत विचित्र से लग रहे थे, क्योंकि उसके शर्ट और उसके शॉर्ट से मैच ही नहीं कर रहे थे, उसके कलर अलग थे। Someone gave them to me. He says in the manner of an explanation. अब वो एक्सप्लेन करते हुए ये बोल रहा है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। The fact they are discarded shoes of some rich boy. और फैक्ट क्या है कि एक्चुअली डिस्कार्डेड क्या होता है कि छोड़ना किसी चीज़ को, है ना, लेफ्ट करना, इग्नोर करना हम कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इस शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब फेंक दिया, रिमूव कर दिया। तो किसी अमीर लड़के के ये शूज़ थे जिसने शायद इनको इसीलिए रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनके उसके पेयर ऑफ शूज़ में कहीं ना कहीं होल था, ठीक है। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उससे तो ये चीज़, मतलब ऑब्वियसली साहिब को क्या परेशानी थी इस चीज़ से, साहिब को उस होल वाले शूज़ से कोई परेशानी नहीं थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. तो जो इंसान barefoot घूमता है, जिसके पास में कुछ है ही नहीं पहनने को, अगर उसे कोई शूज़ मिल जाते हैं तो इवन अगर उसमें होल भी होता है तो भी उसके लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जैसे कोई सपना पूरा हो गया। बट दिस गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन जिस गेम को वो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देख रहा था, वो टेनिस गेम उसके लिए शायद पॉसिबल नहीं था, उस तक पहुंचना या वो खेलना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। सो एक सुबह साहिब जो है वो क्या है, अपने रास्ते में मिल्क बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर, कैनिस्टर क्या होता है, बहुत बड़ा स्टील का ड्रम टाइप होता है ना, जिसमें कि हम कॉफ़ीज़, आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशंस पे चाय कॉफ़ी बेचते हैं तो बड़े बड़े उनके पास में ड्रम टाइप होते हैं ना, जिसमें वो चाय कॉफ़ी बेचते हैं, दैट इज़ कैनिस्टर। I now work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance. तो उसने इशारे से, मतलब हाथ, मतलब ऐसे आगे करते हुए इशारे से इंडिकेट करा कि मैं वहाँ काम करता हूँ एक टी स्टॉल पे अब, ठीक है। I am paid 800 rupees and all my meals, तो उसे इस काम के लिए टी स्टॉल पर 800 रुपये मिलते हैं और उसकी सारी मील्स, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है वहाँ पर। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो नरेटर ने उससे पूछा साहिब से, क्या तुम्हें जॉब अच्छा लगा? हिज फेस आई सी हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक। सो एकदम से उस साहिब का जो फेस था उस पर हल्के से स्ट्रेस आ गया, यानी वो सोच में पड़ गया कि मतलब शायद ये जो चीज़ है या जो उसका जो नया जॉब है कहीं ना कहीं उसे थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। सो जो स्टील कैनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हैवी होता है। किससे हैवी होता है? प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी होता है, जिसने, लेकिन उसने, किसने? साहिब ने उसको इतना लाइटली पकड़ा हुआ था ओवर हिज शोल्डर। द बैग वॉज हिज। The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. This is a very important line. Sahib is no longer his own master. You have to elaborate this line and this may come in your 6 marks question. Okay. So actually what happened, what he told Sahib, कि नरेटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि साहिब जो है वो पहले रैक पिकिंग का काम करता था, तो क्या उठाता था वो अपने शोल्डर पे? प्लास्टिक के बैग्स उठाता था। अब वो टी स्टॉल में काम करता है तो कितना हैवी कैनिस्टर, चाय कॉफ़ी का कितना हैवी होता है वो कैनिस्टर स्टील का, वो अपने शोल्डर पे उठाता है। लेकिन वो कैनिस्टर जो है साहिब को बड़ा हल्का महसूस होता है उठाना, क्योंकि उसे ये लगता है
कि वो इजीली इसलिए उठा लेता है इस हैवी से कैनिस्टर को क्योंकि व्हाट ही फील्स दैट इट इज सम रेप्यूटेड जॉब इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रैग पिकर। ठीक है, एक कचरा उठाने से तो टी स्टॉल में काम करना थोड़ा सा रेप्यूटेड जॉब है। साइमल्टेनियसली व्हाट द नरेटर इज सेइंग दैट जो बैग वो रैक पिकिंग के लिए यूज में लेता था वो उसका खुद का था, नहीं यानी कि वो उस चीज का खुद मालिक था। दैट वॉज हिज ओन जॉब, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ दैट जॉब। ठीक है, वो अपना मास्टर था उस जॉब का, वो किसी के डोमिनेंट नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैनिस्टर जो है वो किसको बिलोंग करता है, टी स्टॉलर को बिलोंग करता है। यानी कि यहाँ पर सब किसकी मर्जी चलेगी, टी स्टॉलर की चलेगी। एंड साहिब को जो पे करता है वो सैलरी पे करता है, तो उसकी वजह से साहिब को उसके अंडर काम करना पड़ता है। ही हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स, साहिब को उसके ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। ही वॉज वर्किंग अंडर समवन, और अब उसकी डिज़ायर से कुछ नहीं होता। पहले रैग पिकिंग उसका खुद का ऑक्यूपेशन था, उसका खुद का उसकी खुद की सर्वाइवल के लिए वो कर रहा था, तो इट वॉज हिज ओन जॉब। बट यहाँ पर ही वॉज वर्किंग अंडर समवन, सो द मास्टर एक्चुअली ही हैड टू द साहिब हैड टू means he had to depend on his master for everything, and he had to follow his master's order. So that is why Sahib is no longer his own master. Okay, I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. Now another character, a very important character, is going to introduce, that is Mukesh. मुकेश क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी है। इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और मुकेश अपनी खुद का मास्टर बनना चाहता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, दो स्टोरीज हैं, एक साहिब की है, एक मुकेश की है। साहिब रैक पिकर है, मुकेश एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है फिरोज़ाबाद में। लेकिन आप यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही मुकेश अपनी एम्बिशियस लाइफ बता रहा है, दैट मुकेश इज़ वेरी एम्बिशियस बॉय एंड ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वो खुद अपना मास्टर बनना चाहता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता है, मीन्स ही डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ हिज लाइफ। लेकिन एक तरफ आप साहिब को देखिए जो खुद अपना मास्टर नहीं बन रहा, उसने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और चाहे वो दुखी है, अंदर से उसे ज़्यादा खुश नहीं है कि वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि ऑन वन साइड 800 रुपीज़ मिल रहे हैं, रेपुटेड जॉब है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी लाइफ से। लेकिन वही मुकेश क्या कर रहा है, उसके बड़े बड़े सपने हैं कि वो कार चलाना चाहता है, और वो अपने खुद अपना डिज़ायर्स का, अपने जॉब का खुद मालिक बनना चाहता है। आई विल बी मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, तो वो क्या अनाउंस कर रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। सो नरेटर ने उससे पूछा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, तो उसने बोला कि हाँ मैं सीख लूँगा कार चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, और वो डायरेक्टली नरेटर की आइज में देखते हुए बोला, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town फिरोज़ाबाद। तो उसके जो सपने थे वो एक मिराज की तरह दिख रहे थे। मिराज होता है ना, जैसे हम जब रोड पे चलते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन से क्या दिखता है कि रोड पे पानी पानी सा दिखता है। कभी आप बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में जाते हैं ना सनलाइट में, तो जब आप ऑन द वे चल रहे हैं तो आगे की रोड पे ऐसा लगता है जैसे पानी है, उसे मिराज बोलते हैं। दैट मीन्स मिराज क्या हो गया, एक टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया, या हम कह सकते हैं कि ये एक इमिटेटिंग थिंग हो गई विच इज़ नॉट रियल। ठीक है, कि इमेजिनेशन हो गई जो कि रियल नहीं होती है। तो यहाँ पर मुकेश का ड्रीम भी कैसा है, एक इमेजिनेशन है जो शायद रियल तो नहीं हो सकता। अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, तो उसका जो टाउन है फिरोज़ाबाद जहाँ मुकेश रहता है, उसने जो वहाँ की जो मिट्टी में उसने अपने सारे ड्रीम्स को, वहाँ पर जो उसकी स्ट्रीट्स की जो मिट्टी है वो एक्चुअली उसकी गवाह बनती है, और वो एक्चुअली
वहाँ पर जो सपने देखता है कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, तो फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स पर जो गाड़ी चलाऊँगा, तो वहाँ पर उसके सपने कहीं ना कहीं शो होते हैं। वहाँ पर उस स्ट्रीट में कहीं ना कहीं उसके सपने जो इमेजिनेशन वाले हैं, जो कि शायद पूरे ना हो पाएँ, लेकिन वो इमेजिनेशन कहीं ना कहीं फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट पे हमको दिखती है कि हाँ, ये शायद जो बच्चा है, जो मुकेश है, कुछ सपने देखता है और आने वाले शायद समय में वो क्या करेगा कि फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट पर वो कार ज़रूर चलाएगा। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, सो फिरोज़ाबाद वाज फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। सो हर फैमिली जो फिरोज़ाबाद में रहती थी वो ज़्यादातर क्या करती थी, बैंगल मेकिंग सी करती थी, चूड़ी बनाने का काम करती थी। It is a center for India of India's glass blowing industries. So actually फिरोज़ाबाद क्या है कि पूरा इंडिया का सेंटर है जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज फिरोज़ाबाद में ज़्यादा है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ काफ़ी सालों से परिवार एक्चुअली काम करते रहते हैं, मतलब काफ़ी जनरेशन से, 1 to 1 जनरेशन वो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं अराउंड फर्नेसेस। ऑब्वियसली फर्नेस का भट्टी के पास ही होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी हम देखें तो जयपुर, लक्ष्मणगढ़, इसमें भी जो चूड़ी बनाने का, लाख की चूड़ी बनाने का काम होता है, तो किस पे होता है, वो फर्नेस पे होता है, भट्टी के पास होता है। तो वैसे ही फिरोज़ाबाद में वो भी यही काम करते थे। वेल्डिंग ग्लास, किसी ग्लास को वेल्ड करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। सो फिरोज़ाबाद की सारी लेडीज़ के लिए बैंगल्स बनाना, तो बैंगल मेकिंग, ग्लास का काम होता है, वेल्डिंग करने का होता है ग्लास का काम। तो ये सारे जो काम हैं वो मतलब वहाँ पर फिरोज़ाबाद में जनरेशन टू जनरेशन वो ये काम किया करते थे। सो फिरोज़ाबाद के लोगों का एक्चुअली लाइवलीहुड कमाने का क्या साधन था, इट वॉज ग्लास मेकिंग और ग्लास इंडस्ट्री और बैंगल मेकिंग हम कह सकते हैं। और वहाँ पर सीमापुरी में जो साहेब और रैक पिकर्स हैं, उन कम्युनिटी का क्या है, रैक पिकिंग करना, ठीक है। वो रैक पिकिंग से अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, अर्निंग्स करते हैं, और ये बैंगल मेकिंग से करते हैं। ओके, सो आई थिंक you understand the chapter, and will continue the remaining chapter in the next video. Till then, happy learning.